Good morning, boys and girls. The stanza that is displayed on your screen is the third stanza of the poem Inkling from the Dark. In the previous lecture, we have understood two, stanzas, and today we will try to understand the last stanza. I remember, boys and girls, I said if you see the opening of the poem, it is very, it opens at a very negative note, or you can say pessimistic note, and in the first stanza you have seen the poet has basically having a series of dreams, and all the dreams are horrific dreams where you are finding an eagle in the wild shadows of his mind, and he killed the innocent dove, and you are finding the feathers were spread over the hilltops into the entire atmosphere. Then there's one more dream, and the dream is, if you remember, he saw the deep dark chasm, a sort of opening, dark opening, while simply leaning in his room. Okay, then in the meanwhile, what happens? The poet finds that there's a lot of chill, because perhaps the poem is written in almost winter, midwinter, and he feels a lot of cold, and because of that the internal atmosphere of the room and the external atmosphere of the room both are horrific. Both the condition inside the room and outside the room are considered to be very 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 disturbing, and the poet is disturbed. Then in the second stanza I am giving you is an overlook of the these two stanzas. Otherwise, in the previous lecture I have discussed it properly. And then you are finding that a cat is hung by the hanger, where the poet's upper garment is always stuck. But when you find a cat is hung by the hanger, and he is more disturbed, and he wouldn't believe his eyes. That's why he's rubbing his eyes. Then he finds one more problem in the poem which disturbs him too much. He's finding a owl is hooting outside the house, the home. And what the owl says, "Oh woe to you, oh woe." The owl is basically cursing, condemning the poet. And because of that, he has almost raised a cry of lament. He is weeping, in other words. And that is happening in the second stanza, right? Okay, today this is the third stanza. We will try to see in third stanza what is happening. What is the point of view that poet is trying to make, right? Now see these lines. Suddenly I called my mind, my darling son. How raptly did he listen to my bedtime tale last night, when I told him the agony of Oyster in her travails. But he only heard the part of the tale when sleep overtook him. I rose like a moonstruck man and turned on the lights, and found him lying by the wall like a mushroom on the mount, in deep slumber, with fragrant blossoms blooming on his lips, and a drop of sweat dawn afresh playing on his brow. Perchance he was dreaming the rest of the tale. Perchance the oyster had labored forth a pearl. Now this is the last stanza. Okay. Okay, let us try to understand. Suddenly I called my mind, my darling son.
as you know, there is much disturbing, situation in his room, especially where he is lying, you know, in the bed. Suddenly I called my mind my darling son. Now he recalled, उसको याद आ गया, his darling son, वो बेटा जो इसके साथ कहीं ना कहीं बिस्तर में सोया हुआ था. हाउ रैप्टली हम कहते हैं, व्हेन यू लिसन समथिंग केयरफुली. जिस वक्त आप किसी चीज़ को सुनते हैं, लेकिन आप सुनते हैं पूरी, इसको क्या कहेंगे हम, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप किसी को सुनते हैं, दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी रैप्टली. और व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ फुल्ली, ठीक है, उसको कहते हैं रैप्टली. हाउ रैप्टली डिड ही लिसन टू माई बेड टाइम टेल लास्ट नाइट. क्योंकि जो पोइट है रहमान राही, इस पोइम में वो असल में रिकलेक्ट करता है अपने बच्चे के बारे में, जो शायद कहीं ना कहीं इस पोइम में उसके साथ कहीं पे सोया हुआ है. और फिर बकौल पोइट, हाउ रैप्टली डिड ही लिसन टू माई बेड टाइम टेल लास्ट नाइट, वो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ कहानी सुन रहा था अपने पिता की, यानी रहमान राही की, ठीक है, यानी पोइट की. पोइट उसको कहानी बता रहा था और बच्चा बहुत केयरफुली उस कहानी को सुन रहा था. उसको उस कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आया, ठीक है. जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहानी पहले अब आजकल भी कहीं कहीं पे होता है कि उनको कहानी बताई जाती थी और उसी के साथ वो सो जाते थे. शायद बच्चा सुन रहा था कहानी रात के टाइम सोते वक्त, अपने पिता से कहानी सुन रहा था और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा था. और बकौल पोइट, व्हेन आई टोल्ड हिम द एगनी ऑफ द ऑयस्टर इन हर ट्रेवल्स. अब देखिए यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हैं आपके लिए जो बहुत ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड. पहली बात, एगनी नॉर्मली इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ पेन. ये वर्ड मोस्टली नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ होता है, एगनी. When I told him the agony means pain. और किस तरीके की पेन, या आप समझेंगे some sort of trouble, that is again considered to be agony. और oyster आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. oyster होती है एक, समझिए आप, लार्ज फ्लैट सी क्रिएचर, समंदर के अंदर एक तरीके की, हम मछली तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट मछली की तरह एक तरीके का शेल होता है. और शेल में क्या होता है, ये जिस वक्त कहा जाता है कि ये जिसको बच्चे देती है, ये बच्चे की जगह क्या देती है, ये पर्ल, यू अंडरस्टैंड, PEARL, पर्ल. सबसे कॉस्टली होता है पर्ल, प्राइसलेस. और उसके बाद फिर डायमंड का नंबर आता है. फिर हमारे पास कॉस्टली चीज़ें हैं दुनिया में, उनमें सपोज़ हम गोल्ड को लेते हैं, ऐसे ही हम डायमंड को लेते हैं, ऐसे हम पर्ल को लेते हैं. और पर्ल जो पैदा होता है, पर्ल एक्चुअली कहाँ से पैदा होता है, ऑयस्टर से. ऑयस्टर एक्चुअली देती जो है, वो जो जुनती है, वो जुनती है पर्ल, ठीक है. और ट्रेवेल्स, देखो एक लफ्ज़ है, तीसरा वर्ड ट्रेवेल्स, इसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है. ये ट्रेवेल्स क्या चीज़ होती है, ट्रेवेल्स आपको समझना पड़ेगा. ट्रेवेल्स असल में ये जो है, ये ख़तरनाक किस्म की पेन होती है, एक्सट्रीम पेन. और एक्सट्रीम पेन से मेरा मकसद ये है कि जिसको आप कहेंगे लेबर पेन, यू अंडरस्टैंड. लेबर पेन मोस्टली उनको लेडीज़ के साथ मुंसलिक है, जो डिलीवरी के टाइम पेन होती है, दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी ट्रेवेल्स, राइट. नाउ आई बिलीव कि यू हैव अंडरस्टूड इट. एग्नी समझिए पेन, मगर ये थोड़ी रिलेटेड विद मेंटल पेन, यू कैन से इट मेंटल पेन. एंड ट्रेवेल्स इज अगेन एक्सट्रीम पेन, बट इट इज़ कंसीडर्ड टू बी लेबर पेन, राइट. अब कौन सी कहानी बता रहा था पिता बच्चे से, When I told him the agony of oyster, वो पिता बच्चे को बता रहा था एग्नी ऑफ ऑयस्टर, जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा पेन थी किसको, ऑयस्टर को, इन अ ट्रेवल्स, जिस वक्त वो लेबर पेन में इन्वॉल्व थी, ठीक है. ऑयस्टर जिसको लेबर पेन में इन्वॉल्व थी, उस पेन का तज़किरा होता है, क्योंकि लेबर पेन बहुत ही शदीद किस्म की पेन होती है. अगर हम लेडीज़ को भी देखें, नॉर्मली
ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की पेन होती है जिस वक्त जिस टाइम आप लेबर पेन कहेंगे या जिस बच्चा जनने का टाइम हो, ठीक है। और उसी तरीके की डिटेल जो है वो पोइट अपने बच्चे को बता रहा था, बट ही ओनली हर्ड पार्ट ऑफ द टेल। उसने सुनी आधी कहानी व्हेन स्लीप ओवरटुक हिम, स्लीप ओवरटुक हिम, ठीक है। और उसको नींद आ गई, क्योंकि नींद का गलबा था, स्लीप ओवरटुक हिम, नींद का गलबा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, ही हर्ड पार्ट ऑफ द टेल। सारी कहानी उस बच्चे ने नहीं सुनी, उसने कुछ कहानी सुनी और उसको नींद आ गई और वो सो गया, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। आई रोज लाइक ए मून स्ट्रक मैन एंड टर्न ऑन द लाइट। यू नो द पॉइंट, आई रोज, आई सैड कि ये फर्स्ट पर्सन नरेटर इसने इस्तेमाल किया है इंटायर पोइम में। यहाँ पे देखिए, आई रोज लाइक ए मून स्ट्रक मैन। मून स्ट्रक ऑलमोस्ट पागल हो जाना, ठीक है, पागलों की तरह बिहेव करना। यू नो व्हेन समबडी बिकम्स क्रेजी, ठीक है। आई रोज लाइक ए मून स्ट्रक मैन। पॉइंट वो बोले, पॉइंट उठा कैसे, लाइक ए मून स्ट्रक, पागल इंसान की तरह, क्योंकि इसको याद आ गया मेरा बच्चा भी कहीं पर था मेरे साथ। और पहले दो स्टेंजास में मैंने बताया कि इसको आप दोबारा देख सकते हैं, उन बच्चों के लिए नेसेसरी है जो इसको आज की इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रीसीडिंग जो ये है इसका वीडियो, उसको किसी भी सूरत में देखें, तब जाकर उनको बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वाई इज मून स्ट्रक, ठीक है, क्योंकि कंडीशन द एटमॉस्फेयर दैट इज प्रिवेलिंग इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, राइट। और इसी वजह से क्या हुआ, आई रोज लाइक ए मून स्ट्रक मैन, एक पागल शख्स की तरह ऊपर उठ गया, कौन, पॉइंट, एंड टर्न ऑन द लाइट्स, एंड टर्न ऑन द लाइट, और उसने लाइट को ऑन किया, इस कमरे की लाइट को, ठीक है, जहाँ पर ये सोया हुआ था, जहाँ पर इसको सीरीज ऑफ ड्रीम्स आ रही हैं। रिमेंबर द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट, ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई। तो ही इज डिस्टर्ब्ड कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ थॉट्स, राइट। और उस वजह से ही रोज लाइक ए मून स्ट्रक मैन, ऊपर उठा लाइक ए क्रेजी मैन, एंड टर्न ऑन द लाइट, और उसने लाइट को ऑन किया इन ऑर्डर टू सी कि बच्चा कहाँ पर है, ठीक है। एंड फाउंड हिम लाइंग, हिम यूज हुआ है बच्चे के लिए, एंड फाउंड हिम लाइंग बाय द वॉल, उसने देखा बच्चे को वो बिल्कुल दीवार के साथ है, लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट। अब देखिए यहाँ पर लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट, एक सिमिली का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, पोइट ने किया है, एंड दैट इज डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पोइट, लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट। माउंट कहते हैं हम पहाड़ी को, मशरूम नॉर्मली यू नो, पहाड़ी के ऊपर जो मशरूम होता है कितना खूबसूरत होता है। क्या आइडिया है, लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट, आइडिया ये है कि यू नो बहुत अच्छी तरीके से बच्चा सोया हुआ था, विदाउट एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिर्फ पोइट के साथ हो रही थी, प्रॉब्लम पोइट बच्चे के पिता के साथ हो रही थी, ठीक है। और बच्चा कैसे सोया था, लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट, यू कैन से इज साउंड स्लीप, मशरूम ऑन द माउंट इज साउंड स्लीप, मशरूम ऑन द माउंट ए कंफर्टेबल स्लीप, मशरूम ऑन द माउंट, यू नो लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट, यू कैन से बहुत मज़ेदार नींद आ रही थी बच्चे को, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती थी। इन डीप स्लम्बर with fragrant blossoms blooming on his lips, with fragrant blossoms blooming on his lips। अब देखिए ये लाइन, ठीक है, चूँकि मैं इसको फिगरेटिव पार्ट के ऊपर बात नहीं करूँगा, ये डिवाइसेस जो पोइट ने उठाई हैं, लेकिन सरसरी बात ऐसे होगी, जिसको आप ब्लूमिंग ब्लॉसम्स ब्लूमिंग लिखते हैं, बी एल वाली जो साउंड रिपीट हो रही है ट्वाइस, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एलिट्रेशन। When there is repetition of initial consonant sounds, when there is repetition of initial consonant sounds, that is considered to be alliteration. You understand? Okay, leave this. The idea is in deep slumber, slumber नींद को कहते हैं, सोने को, ठीक है, sleep, that is considered to be deep slumber, right? In deep slumber with fragrant blossoms blooming on his lips, पोइट ने क्या देखा, वो बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके लिप्स के ऊपर एक तरीके की स्माइल छाई हुई है, राइट। इन अदर वर्ड्स, बच्चा स्माइल कर रहा है नींद में, ठीक है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ कंफर्टेबल इन डीप स्लम्बर विद फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स ब्लूमिंग ऑन हिज लिप्स। कोई भी चीज़ जो फूलों के साथ मुंसलिक हो, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड ओमन, राइट। दैट इज़ वाई फ्रेग्रेंट blossoms blooming on his lips।
Now the idea is कि he is smiling in deep, from one side he is in deep slumber and he is smiling. Now the question is why he is smiling, we will try to understand, right? Okay. And a drop of sweat dawn afresh playing on his brow. और क्या देखा? ए ड्रॉप ऑफ स्वेट, जिसको आप बताएंगे पसीने का कतरा, डॉन ए फ्रेश, बिल्कुल तरोताज़ा कतरा, ठीक है, प्लाइंग ऑन हिज ब्राउ, वो इसने पाया इसके, समझिए आप, माथे के ऊपर। एक पसीने का कतरा, ताज़ा ताज़ा कतरा, ठीक है, और ये आप जिसको तो आप ताज़ा कहेंगे फ्रेश वाला, तो ऑब्वियसली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड ओमन अगेन, ठीक है, दैट इज़ विजिबल ऑन हिज ब्राउ, ऑन हिज फोरहेड इन अदर वर्ड्स। ओके, अब जिसको उसने ये देखा, बच्चे के होंठों के ऊपर स्माइल है, बच्चे के माथे के ऊपर बुनियादी तौर क्या कहते हैं इसको, एक तरीके का पसीने का कतरा एक महसूस कर रहा है पॉइंट। परचांस ही वॉज ड्रीमिंग द रेस्ट ऑफ द टेल, बकौल पॉइंट के शायद, परचांस मीन्स परहैप्स, राइट, ही वॉज ड्रीमिंग द रेस्ट ऑफ द टेल, शायद वो देख रहा है ख्वाब में रेस्ट ऑफ द टेल, बाकी ख्वाब, चूँकि पोइट उसको पोइट उसको कहानी बता रहा था, वो कहानी उसने अधूरी सुनी और उसको नींद पड़ गई, शायद उस कहानी का जो बाकी हिस्सा है वो अपनी ख्वाब के दौरान देख रहा है, राइट, दैट इज़ द आइडिया। परचांस ही वॉज ड्रीमिंग द रेस्ट ऑफ द टेल, परचांस द ऑयस्टर हैड लेबर्ड फॉर द पर्ल, शायद परचांस द ऑयस्टर ने क्या किया है, हैड लेबर्ड फॉर ए पर्ल, और उसने दिया है, उसने चुना है एक पर्ल को। पर्ल, यू अंडरस्टैंड, आई सेड पर्ल बहुत कॉस्टली, यू नो व्हाट यू से, मोती, ठीक है, और उस जो ये ऑयस्टर है, ऑयस्टर ने चुना है एक मोती को, ऑयस्टर ने दिया है क्या, एक मोती, ठीक है, और आप जिसको मोती देखेंगे, अब ये ख्वाब का ये अंदाज़ा कर रहा है पॉइंट कि ये ख्वाब का अगला हिस्सा जो बाकी था वो बच्चा खुद देख रहा है, और उसने ये देखा कि ऑयस्टर ने किसको पैदा किया, एक पर्ल को पैदा किया, उसने एक पर्ल दिया, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, जिसको तो आप कहेंगे उसने एक पर्ल दिया। ये जो इंटायर पोएम है, इट एंड्स एट ए वेरी पॉजिटिव नोट। Remember I said the poem begins at a negative note and it ends here at a positive note. There is some sort of hope, right? मतलब यह है कि यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हम महसूस करते हैं कि जो फ्यूचर आगे है पोइट का, that may be brilliant, that may be good, right? क्योंकि here you find some sort of hope is there. The poem begins at a pessimistic note and it ends at an optimistic note. You understand? ये एक्चुअली पोएम में कुल मिला के जो सूरत हाल है वो हमारे सामने आई है, ठीक है। अदरवाइज जिसको तो आप स्टैंजा नंबर 2 को देखते हैं, जिस वक्त ओवल यू नो व्हेन इट स्टार्ट्स कर्सिंग, हमें पता चलता है वहाँ पर कि ही इज़ कर्सिंग एंड कंडेमनिंग पोइट, राइट। वाई ही इज़ कर्सिंग एंड कंडेमनिंग पोइट, we understand perhaps the poet has committed a heinous crime. By heinous crime you can understand any type of crime which is, you know, जो काफ़ी बड़ा क्राइम है, लाइक किसी को मार देना, किसी का कत्ल करना, यू नो, लाइक दिस। तो हम अंदाज़ा करते हैं उसमें ऐसा स्टैंजा नंबर 2 में, और उस वजह से जिसको हम फिर थर्ड स्टैंजा पे आ जाते हैं, यू आर फाइंडिंग समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, और वो इस पोएम में होता है। Boys and girls, you know, this is basically the poem, but we will try to see it is you know, number of areas. First of all, let us try to understand. Yes, देखिए ये कुछ आपके लिए glossary है, phrases and certain words. The thread of my fancy slit, जो पहले stanza में use हुआ है, this refers to the loss of sleep for the poet, right? Loss of sleep for the poet, when the poet's sleep is driven off. Understand? Okay. With the cool of the winter in the marrow of my breast, ये पहले स्टंजा की लास्ट लाइन यूज़ हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था यातिस कर्शस वनान छु कि जन सर्दी ची ईजा ज़्यादा की सिदाई जन अर्जन मंस, you understand? That's why this shows that the poet felt very cold because it was chilly night, it was snowing. From one side it was snowing, from another side
you are finding it as chilly night, and you understand you are from Kashmir, you are from Tahartpura, you can easily understand, you know, when you see कि चले कलाम की सिचुएशन कैसी होती है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. ओके, now see the third one, that is again a phrase and a very important phrase. Fan would I have raised a cry of lament. क्या होता है lament? I said कि ये it is considered to be, you know, एक ऐसा omen where you start sobbing or crying, right? The poet is unable to make a sound because नहीं रो रहा है, वो एक्चुअली रोने के बिल्कुल नज़दीक है लेकिन रो नहीं रहा है, जैसे उसकी आवाज़ फंस रही है. बिकॉज हेलुसिनेशन है ओवरवेलम्ड हिम, राइट? इन अदर वर्ड्स वो ऑलमोस्ट रो रहा है. यू अंडरस्टैंड? वो बिल्कुल ये तैयार है, चूँकि जिसको उसको ओवल भी बाहर से तंग कर रहा है, अंदर रूम का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही डिस्टर्बिंग है, उस वजह से ये ऑलमोस्ट रोने के करीब है. ओके, इन अदर वर्ड्स ये अंदर से रो रहा है. आई रोज लाइक ए मून स्ट्रक मैन. मैंने बताया मून स्ट्रक मैन हुआ जस्ट लाइक ए मैड मैन की तरह ऊपर उठ जाना, बिस्तर से खड़ा हो जाना. ठीक है. द पॉइंट इज फ्रेंजीड बाय हिज थॉट्स एंड राइजेस टू सी हिज सन. पागलों की तरह वो खड़ा हो गया और अपने बच्चे को ढूंढने लगा. अब देखिए स्मॉल डर्ट, बर्न्ड, टू सफोकेट, टू चॉक. ठीक है, चौक या तो वना गंड गंड लगन, राइट? सफोकेट किसको बोलते हैं? सफोकेट भी हुआ दम घुटना, राइट? बर्न यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. काज़म देखिए आप, ओपनिंग है, गैप, क्रीविसेस, इन सभी चीज़ों को हम काज़म कहेंगे. लेकिन क्रीविसेस स्पेसिफिक है खिड़कियों के साथ, दरवाज़ों के साथ जो नीचे ओपनिंग रहती है उनके लिए, और अदरवाइज वो भी ओपनिंग ही होती. एंड देन यू हैव ट्रिवेल्स, एक्सट्रीम पेन, लेबर पेन. मूनस्ट्रक, स्लाइटली क्रेजी. यू अंडरस्टैंड? स्लाइटली क्रेजी मतलब ऑलमोस्ट पागल, पागलों की तरह बिहेव करना. Perchance, perhaps. This is little bit glossary with regard to the poem. Okay, boys and girls, let us try to understand उब्दर रहमान राही. कौन है रहमान राही? ठीक है, रहमान राही कश्मीर का लेजेंड, यू नो, लिटरेरी जेंट. ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रहमान राही बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट और जनाब अली ट्रांसलेटर है और क्रिटिक एज वेल. ठीक है, अब देखिए, it is visible on your screen. About the poet Abdur Rahman Rahi, you know the full name. Born March 6, 1925. Where? In Srinagar, right? Is an outstanding Kashmiri poet, translator and critic. अब देखिए, कश्मीरी poet भी है, translator भी है and critic. If you talk of the word critic, I will tell you, critic is simply a person, an artist who analyzes a work of art, who evaluates a work of art, and then interprets for the public. You understand? उसको हम कहते हैं क्रिटिक. को क्रिटिक कोई मामूली शख्स नहीं होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इसको काफ़ी किताबों पे नज़र होनी चाहिए, इसको किसी वर्क ऑफ आर्ट को एवेलुएट करने की और एनालिसिस करने की सलाहियत होनी चाहिए. ठीक है, फिर उसके ऊपर अपना कमेंट देने की सलाहियत होनी चाहिए. दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी क्रिटिक. ये रहा है रहमान राही, कश्मीरी पोइट, ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक. ही इज़ द ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑफ पोएम्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ठीक है, ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑफ पोएम्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ठीक है, ही इज़ रेसिपेंट ऑफ मैनी लिटरेरी अवार्ड्स. देखो क्या क्या अवार्ड मिले हैं इसको. पहले इंडियन साहित्यक एकेडमी अवार्ड इन 1961, जो लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है. साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया है इसको 1961 में. यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको आपने देखना पड़ेगा. किस लिए? फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन जो इसने छापी थी, नवरोज़ सबा. ठीक है, नवरोज़ सबा ये उसकी पोइट्री कलेक्शन थी और इस पे दिया गया उसको साहित्य एकेडमी अवार्ड 1961. और पद्मश्री in 2000. पद्मश्री, you can understand, again an extraordinary award, right? पद्मश्री in 2000. और फिर दूसरी चीज़, and India's highest literary award. कौन सा? द ज्ञानपीठ अवार्ड. ठीक है, इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, जो हिंदुस्तान में हाईएस्ट दिया जाता है लिटरेरी फिगर्स को.
ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2004 इन 2007। ठीक है, ये आपने जहन में रखना। और ये पहला है, ही इज़ द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवार्डेड ज्ञानपीठ, पहला कश्मीरी राइटर who has been awarded what? The Gyanpith, India's highest literary award. For his poetic collection क्या है? सियाह रूद जैन मैन in the heavy down power बारिश को, रूद कश्मीरी में, of black rain, in the heavy down power of black rain, इसमें दिया गया सियाह रूद, सियाह कश्मीरी में सियाह रूद, यू अंडरस्टैंड? ओके। इसमें इसको दिया गया ज्ञानपीठ, द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवार्डेड बाय ज्ञानपीठ। और ज्ञानपीठ क्या है? हिंदुस्तान का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, यू अंडरस्टैंड? ये है रहमान राय। यू कैन अंडरस्टैंड रहमान राय, द स्पेशलिटी ऑफ रहमान राय। ओके, नाउ सी दिस। Rahman Rai began his career as a clerk in the Public Works Department of government for a brief period in 1948. Right? He acted as a clerk. Clerk रहा है कहाँ पर? In Public Works Department, PWD जिसको आप कहते हैं, right? For a brief period in 1948, and was associated with the Progressive Writers Association. और फिर वो मुंसलिक रहा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसकी बहुत सी शाखें मुख्तलिफ जगहों पे काम करती हैं, ऑफ विच ही बिकम द जनरल सेक्रेटरी, और बन गया क्या? जनरल सेक्रेटरी। ही ऑल्सो एडिटेड ए फ्यू इशूज़ ऑफ कोंग पोश, ठीक है, इन कश्मीरी, टिपिकल कश्मीरी कोंग पोश, उसका क्या है? ही ऑल्सो एडिटर रहा इस मैगज़ीन का। द लिटरेरी जर्नल ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें राइटर्स अपना कंट्रीब्यूट करते थे, उसी का एडिटर रहा। ही वॉज लेटर सब एडिटर इन द उर्दू डेली खिदमत आप बच्चों को मालूम होना चाहिए, एक अखबार निकलता था उर्दू का, डेली उर्दू का, ठीक है, तो उसका रहा है ये सब एडिटर। ही डिड एन MA इन पर्सन इन 1952 and English in 1962 from Jammu and Kashmir University, where he taught Persian. You understand? बहुत पहले 1952 में MA in Persian, 1962 में इंग्लिश में, ठीक है, मास्टर्स, और फिर वहीं पर पढ़ाना, ही taught Persian, ठीक है, पर्शियन भी पढ़ाता था वहाँ पर। He was on the editorial board of Urdu Daily Article in Delhi फ्रॉम 1953 to 1955, ठीक है, 2 साल के लिए वहाँ पे क्या रहा? एडिटोरियल बोर्ड में, और फिर जनाब दिल्ली में, और उर्दू डेली आजकल में, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कल्चरल विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कश्मीर, कल्चरल विंग, रिमेंबर, कल्चरल विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज. As a translator, he did an excellent translation of Baba Farid's Sufi poetry. He did an excellent translation of Baba Farid's Sufi poetry to Kashmiri from original Punjabi. चूँकि बाबा फरीद सूफी पोइट्री जो है वो पंजाबी में लिखी गई है, and he did an excellent translation from Punjabi into Kashmiri. Okay, Camus and Sartre are some visible effects on his poems, right? While Dinanath Nadim's influence on his poetry is also visible, especially in earlier works. ये है basically literary field of what is called Rahman Rai. Okay, now this is biography of Rahman Rai. Boys and students, try to understand it fully, and let us try to understand. No, okay, I'm leaving you here because it is almost half an hour and it takes a lot of time to yes, I'm leaving you here. From here onwards I will be meeting you in the next lecture. Till then, goodbye.